All right, so the learning objectives for today are, this is unit 6, topic number 1, economic issues. Business cycle को देखेंगे, what's a business cycle, the main stages of business cycle, growth, boom, recession, slump, and impact on businesses of changes in employment levels, inflation, GDP. And then how government control of the economy affects business activity and how businesses may respond to those government actions. ठीक है जी? I'm good. Hope you are doing well as well. So what is a business cycle? Business cycle is a cycle of fluctuations in the GDP, gross domestic product. We'll discuss what GDP is, around its long-term natural growth rate. It explains the expansion and contraction in economy activity that an economy experiences over time. So anything that you see with a cycle in it, cycle means कि it keeps on repeating itself. ठीक है? हम business cycle को भी business cycle इसलिए कहते हैं, cycle इसलिए use करते हैं because it doesn't stay constant. ठीक है? उसके जो 4 levels हमने पढ़े थे वो फ्लक्चुएट होके बार बार रिपीट हो रहे होते हैं. ठीक है? तो जस्ट टू मेक इट क्लियर कि बिजनेस साइकिल को अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो इफ यू कैन ड्रॉ अ डायग्राम, अ ग्राफ ऑफ इट. ठीक है जी? जीडीपी आपको वाई एक्सिस पे, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंट्री प्रोड्यूसेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अ ईयर. ठीक है जी? तो ये आउटपुट होता है जो कंट्री एक बना रही होती है. और as years go by on the x axis as you can see. ठीक है जी? So see how it goes. Growth में आपका GDP increase हो रहा होता है. ठीक है? यानी pace of increasing the output is increasing, right? Then boom में basically क्या होता है? Boom में आप थोड़े से stagnant हो जाते हैं, but आपका जो output होता है वो maximum level पे होता है. So basically you're experiencing boom. Then रिसेशन उसको कहते हैं व्हेन यू आर गोइंग डाउन, व्हेन यू स्टार्टिंग टू गो डाउन, यानी आपका आउटपुट अब कम होना शुरू हो जाता है, उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है जब आप लोएस्ट पे पॉइंट पे आ जाते हैं. सो दिस इज नोन एज स्लम्प. ठीक है? रिसेशन क्या होगा? व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू गो डाउन, आपका जीडीपी नीचे जाना शुरू हो जाता है. और स्लम्प क्या होगा? जब आप बॉटम पे आ जाते हैं. ठीक है? आफ्टर स्लम्प फिर फॉर सम टाइम फिर आपकी ग्रोथ हो जाती है. नाउ सी व्हाई डू वी कॉल दिस अ साइकिल? बिकॉज आपकी स्लम्प से वापस ग्रोथ हो रही होती है. Then again, boom, recession, slump, growth, boom, recession, slump. So this continuous cycle is basically known as business cycle, जिसमें ये 4 stages होते हैं. वालेकुम अस्सलाम, will make you welcome. Now see what are the characteristics of these 4 features. Growth जो है उसमें क्या हमने देखा था? Gross domestic product is rising, which means output of goods and services was rising. ठीक है? तभी हमने स्लोप देखी थी एक. अनएम्प्लॉयमेंट इज फॉलिंग. नाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस गाइस कि ग्रोथ में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बूम में क्या है, बिकॉज आपसे सवाल आ सकता है इजीली. All right, unemployment is falling. Businesses are experiencing rising profits because growth है, output ज़्यादा हो रहा है, यानी demand and supply is high as well. Feel good factor among the people as their incomes are also rising. ठीक है? So everything is looking positive at the moment. Growth में, right? Yeah, decline या recession is the same thing. Better word is recession and then slump. ठीक है? Boom में क्या होता है? Results from too much spending. अच्छा, टू मच स्पेंडिंग का यही मतलब होगा कि डिमांड इज एट द मैक्सिमम एंड देयरफॉर प्रोडक्शन इज आल्सो एट द मैक्सिमम. ठीक है? इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस रैपिड इन्फ्लेशन. दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक बट दैट्स अ नेगेटिव वन, राइट? जब देखो आप डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा करेंगे, स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे, इसका मतलब है द प्राइसेस ऑफ गुड्स विल गो अप, राइट? जितनी डिमांड होगी, जितनी स्पेंडिंग होगी, उतने ज्यादा प्राइसेस राइज कर जाएंगी. सो बूम में आपकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही होती है, यानी इन्फ्लेशन इज द रिजल्ट ऑफ बूम. अलैकुम अस्सलाम. Exactly, Daniel. Factors of production become expensive, and because of this inflation, आपके factors of production expensive हो जाते हैं, यानी कि आपकी cost of production expensive हो जाती है. Then leading to what? Recession. Recession में फिर आपकी spending कम हो जाती है because purchasing power कम हो जाती है. ठीक है जी? इस केस में क्या होता है? The GDP starts to go down, right? GDP is falling, and demand in the economy will fall, leading to closure of firms and unemployment because they could no longer afford it. And then जब आपकी ये बॉटम लेवल, रॉक बॉटम पे टच कर जाती है, यानी लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट पे, दैट इज नोन एज स्लम्प. हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस विल रैपिडली क्लोज डाउन, यानी जीडीपी आपकी लोएस्ट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बहुत ज्यादा होती है. हाउएवर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई होती है, बिकॉज देखो आप डिमांड ही नहीं कर रहे तो प्राइसेस स्टार्ट टू क्रीप डाउन एज वेल. ठीक है? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर 4 stages ऑफ business cycle. All right. Up, what are the economic objectives of any government of any country? ठीक है?
चार मेजर हैं, उसमें आप ये देख लीजिए, कंटिन्यूस एंड स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ, टू अचीव अ स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ व्हिच मींस टू इंक्रीज आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज so that they can raise the population's living standard. So first one is stable economic growth. Then low inflation, उन्हें महंगाई को भी कंट्रोल करना होता है, to maintain the value of money and reduce economic uncertainty. Then low unemployment. So we have economic growth, low inflation, low unemployment or high employment is the same thing, to reduce the human and economic cost of people out of work. यानी कि आपने उनको जॉब्स प्रोवाइड करनी है. दैट्स द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एम्स ऑफ एनी गवर्नमेंट, राइट, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. एंड द लास्ट वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम. बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं जो डिफरेंस होता है बिटवीन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. सो दे नीड टू रीच एन इक्विलिब्रियम विच मीन्स नॉर्मली हम इसको कहते हैं कि पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ जाना चाहते हैं. ठीक है, सो दे शुडंट बी इंपोर्टिंग टू मच, यानी हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स की बात नहीं कर रहे. व्हाट्स द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान? पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है वो बेसिकली आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, या यू कुड से एग्रीकल्चरल आउटपुट होता है, विच इज नॉट ऑफ दैट मच वैल्यू, राइट. बट जो हम जो इंपोर्ट करते हैं, वी इंपोर्ट व्हाट? वी इंपोर्ट एजुकेशन, वी इंपोर्ट मशीनरी, कैपिटल गुड्स. उनकी जो वर्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है जी, तो यहाँ पे वी आर फेसिंग अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, यानी हमारी इंपोर्ट्स की वैल्यू ज़्यादा होती है और एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कम होती है. ठीक है जी, तो इसको यही आपने करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम अचीव करना होता है. सो व्हाट आर द फोर ऑब्जेक्टिव्स देन ऑफ एनी गवर्नमेंट? इकोनॉमिक ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन, लो अनएम्प्लॉयमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, राइट. नॉट नो 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 नो, वो तो फिर अकाउंटिंग टर्म्स में आप चली जाएंगी. ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही बराबर हो जाए. दैट विल नॉट नेवर बी द केस कि आपकी इंपोर्ट्स की वैल्यू 100,000 है तो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू भी 100. इक्विलिब्रियम ओवर हियर मींस रफली स्पीकिंग, ठीक है, कि आपका इतना ज़्यादा डेफिसिट भी अच्छा नहीं है, राइट, इतना ज़्यादा सरप्लस भी अच्छा नहीं है. ठीक है, खैर इसकी डिटेल आपको इकोनॉमिक्स में शायद मिल जाएगी, बट दैट्स नॉट पार्ट ऑफ योर बिजनेस का सिलेबस. ठीक है, सो आपको ये याद रखना है कि चार ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, राइट. नाउ सी इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग जीडीपी. व्हाई डज द गवर्नमेंट नीड टू इंक्रीज द जीडीपी? क्योंकि हम जब देखते हैं कि रिड्यूसिंग जीडीपी, रिसेशन जिसे कहते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे? As output falls, fewer workers will be needed by firms, so unemployment will rise. So see, one thing leading to another thing. जब आपके आउटपुट गिर रहा होगा, ठीक है, so the firms no longer need the employees. कि यार अब तो आउटपुट डिमांड ही गिर रही है, तो we don't need to produce any good and services या more good and services. तो जितने भी लेबर एक्स्ट्रा उनको लग रहे होंगे उनको वो रिडंडेंट कर देंगे, उनको अनएम्प्लॉय कर देंगे. सो जीडीपी कम होने से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी राइज हो जाती है. That's why it's one of the aim कि आपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, so that employment भी generate हो. As goods and services that can be consumed by the people falls, the standard of living in the economy will also fall, and therefore, as a result of this, any government and every government has this economic growth का aim, ठीक है, so that उसकी employment भी rise करे और living standards भी increase करें. So what about inflation? देखो जी, 1972 1992 यानी ये 20 years के गैप से आपको ये बता रहे हैं कि $1 का बिल जो है वो आपको 72 में इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता था, राइट. 92 में थोड़ी कम हो गई और 2012 में बहुत ही कम हो गई. नाउ व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस रिमेन कांस्टेंट. ये $1 ही रहा, ये भी, बट द परचेजिंग पावर ऑफ दैट $1 फेल. ठीक है जी, यानी जो पहले $1 करेंसी की वर्थ कम हो जाती है, राइट, इसी कहते हैं इन्फ्लेशन. एग्जैक्टली, ठीक है जी. मनी ऑलवेज लूजेस इट्स वैल्यू. ठीक है जी, ये तो गिवन है. तो आपका $1, जैसे यहाँ पे भी यही था कि पहले $1 में बहुत कुछ आ जाता था. ठीक है, बहुत कुछ आ जाता था आपके पेरेंट्स के ज़माने में, मे बी आपके ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में, बट ₹1 मेरे ख्याल अब तो ऑब्सोलीट ही हो गया तकरीबन. ठीक है जी, सो दैट्स द केस विद मनी, राइट. सो रियल इनकम्स फेल. इसका मतलब है देखो, नॉमिनल तो वो $1 ही रहा है ना भाई, बट इफ यू टेक द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन तब आपकी रियल इनकम मीन्स नथिंग as a result of inflation, right. So real incomes fall. real का मतलब ये after accounting for the effect of inflation, आपकी इनकम गिर गई है. ठीक है, purchasing power of money fell due to inflation, and that's the reason कि inflation को कंट्रोल करना is one of the most common objectives of any government. ठीक है, ताकि पैसा अपनी वर्थ रखे. Now what's the case? अगर आप 10% इंक्रीमेंट लगाते भी हैं, ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए या वर्कर्स के लिए, दे आर नॉट दैट हैप्पी बिकॉज इन्फ्लेशन रेट माइट बी 15% लेट से. तो उनको रियल टर्म्स में तो लॉस ही हो रहा है कि यार हमारी ऑल द 10% से सैलरी तो बढ़ गई है,
बट महंगाई 15% से बढ़ गई, सो रियल टर्म्स में वी आर लूजिंग 5% एक्चुअली, ठीक है। दैट्स व्हाट इट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। महंगाई का मसला ये होता है, ठीक है जी, परचेजिंग पावर गिर जाती है, राइट। इफेक्ट्स क्या है इसके? इन्फ्लेशन, वेज प्रेशर, वर्कर्स डिमांड हायर वेजेस, व्हाई? बिकॉज जब चीजें महंगी होंगी सो ऑब्वियसली दे नीड मोर टू स्पेंड, राइट। लेस competitive, if inflation is higher than international competition, आपकी goods less competitive हो जाएंगे because it's expensive to produce your goods and services। तो आपके goods international market में ज़्यादा महंगे होंगे, which means less competitive, people will prefer to buy another country's goods। Real debt level fall, firms with debt may be better off। एक पॉजिटिव चीज ये होती है कि अगर आपने डेट लिया हुआ है और इन्फ्लेशन हो जाती है, आपने तो उतनी अमाउंट वापस रीपे करनी है, बट रियल टर्म्स में उस अमाउंट की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज अ बेनिफिट जो बोरो करता है, बट ये लॉस किसको होगा? जो लेंडर होगा, ये उसको लॉस होगा। क्योंकि देखो, अगर आप, इफ आई बोरो 100 फ्रॉम यू, मैं कहता हूँ आपको नेक्स्ट ईयर में 100 में रीपे कर दूंगा, क्या आप कहते हैं ठीक है, बट नेक्स्ट ईयर 100 की वर्थ वो नहीं है जो अभी है, बिकॉज मनी लूज इट्स वैल्यू। सो आई एम बेटर ऑफ एंड यू आर वर्स ऑफ। लेस कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट, ऑब्वियसली इफ यू सी क्या पैसा लगा रहे हैं, पैसे की वर्थ ही नहीं है, सो देन कॉन्फिडेंस भी कम होगा और इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन could be a sign of rising demand or low supply, as we discussed, इकोनॉमिक ग्रोथ से आपकी इन्फ्लेशन हो जाती है। एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मीन्स जब इन्फ्लेशन होगी तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा लगेगी, राइट, विच मीन्स आपकी एक्सपेंसिव प्रोडक्शन हुई होगी, which means आपने ज़्यादा प्राइसेस भी रखनी पड़ेंगी। So they all, everything is linked. These are the effects of inflation, right? Imports and exports के बारे में हम I think topic 2 या topic 3 में डिस्कस करेंगे, right? So ये है। Now see, high unemployment के क्या economic and social effects होते हैं? Economic cost means जो monetary terms में हम ले सकते हैं। Lost output obviously, अगर लेबर एम्प्लॉय नहीं है तो फिर प्रोडक्शन भी कम हो रही है। इकोनॉमी इज इनसाइड द पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, बिजनेस का चैप्टर नहीं है, इकोनॉमिक्स का है, ठीक है, बट दैट्स द इफेक्ट ऑफ इट। यानी जितना पोटेंशियल है प्रोडक्शन का आप उतना नहीं कर पा रहे बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट है। फॉल इन रियल इनकम्स एंड लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स, ऑब्वियसली आपके लो स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे। ड्रॉप इन टैक्स रेवेन्यूज, क्योंकि सी इनकम टैक्स जो होता है दैट्स अ सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर द गवर्नमेंट। जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी इसका मतलब है उतना ज़्यादा टैक्स नहीं मिल रहा गवर्नमेंट को, ठीक है। एंड पॉसिबल डिक्लाइन इन लेबर सप्लाई, बिकॉज अगर वेज रेट लो होगी सो मेनी पीपल वोंट बी विलिंग टू वर्क फॉर दैट वेज रेट, सो सप्लाई ऑफ लेबर शॉर्ट हो जाएगी। इसका मतलब है इट वुड बी हार्ड फॉर द कंपनीज टू फाइंड द राइट लेबर, ठीक है। और इसकी सोशल कॉस्ट क्या है? सोशल कॉस्ट क्या होगी जो सोसाइटी पे जनरली इफेक्ट करती है? इंक्रीज इन रिलेटिव पॉवर्टी एंड वेलफेयर डिपेंडेंसी, यानी नाउ डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। एक्स्ट्रा डिमांड्स ऑन नेशनल हेल्थ सर्विसेज, क्योंकि अच्छा वी से कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट से गवर्नमेंट भी बड़ा बर्डन आ जाता है, बिकॉज ना गवर्नमेंट नीड्स टू फीड दोज पीपल, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जिसे कहते हैं। लिंक बिटवीन परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट से आपकी यू कुड से रॉबरीज, थेफ्ट्स, ये सारी चीज़ें, स्नैचिंग वगैरह ज़्यादा हो जाता है बिकॉज you need to eat something, right? Or that's their justification, although it's wrong, but yes, उससे crime rate बढ़ जाता है आपका, ठीक है। So are there any beneficial effects or not? हर चीज के pros and cons होते हैं। reduced risk of inflation, हाँ अगर high unemployment होगी तो आपकी inflation भी कम होगी because demand of goods and services है नहीं as such, क्योंकि लोग unemployed है and therefore prices will come down, ठीक है। तो इससे inflation जो इसका link है that is inverse। pool of unemployed labor available for growing businesses, यानी now you have more people to choose from, ठीक है। इसका हमने एमसीक्यू भी किया हुआ है। अगर ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो इसका मतलब है बिजनेसेस के पास ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हैं टू चूज फ्रॉम। राइज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप्स एज ऑल्टरनेटिव टू बीइंग अनएम्प्लॉयड, ठीक है जी। यानी अब पीपल विल स्टार्ट टू लुक फॉर देयर ओन स्टार्टअप्स विच इज़ मच बेटर देन लुकिंग फॉर एनी जॉब, ठीक है। यस एग्जैक्टली मेरी, बिल्कुल ठीक है, सही है। एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू कंट्रोल इन आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज इफेक्ट्स ऑफ अ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी अगर डेफिसिट होता है उसके क्या इफेक्ट्स हैं और अगर सरप्लस होता है। डेफिसिट मींस व्हाट? इंपोर्ट्स की वैल्यू इज मोर देन एक्सपोर्ट्स की वैल्यू, ठीक है। यानी यू हैव टू पे मोर देन यू आर रिसीविंग। इट मस्ट बोरो फ्रॉम अदर कंट्रीज टू पे फॉर इट्स इंपोर्ट्स। फिर होगा क्या? इफ यू डोंट हैव इनफ मनी तो आप क्या करोगे? आप बोरो करोगे, यानी यूल टेक लोन फ्रॉम अदर कंट्रीज व्हिच विल ऐड टू योर डेट। फिर आपने उस पर इंटरेस्ट पेमेंट्स भी करनी है, उसको रीपे भी करना है। इन द शॉर्ट टर्म दिस फ्यूज इकोनॉमिक ग्रोथ, शॉर्ट टर्म के लिए तो सही है जी, आई हैव बॉट लॉट ऑफ इंपोर्ट्स, ठीक है जी।
However, in the long run, it will have to go into debt to pay for consumption, और debt आपका बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है. That's how debt goes up. जब आप import ज़्यादा करते रहेंगे, इसका मतलब आप debt लेते रहेंगे, ठीक है. And surplus means exactly उसका आई थिंक टॉपिक 3 होगा वो लास्ट, ठीक है. जब करेंसी की बात करें ना, एक्सचेंज रेट्स की, वो दैट विल बी द लास्ट टॉपिक. बट यस, अच्छा, सरप्लस के केस में क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज मोर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, ठीक है, इसीलिए इसको सरप्लस बोल रहे हैं. सो कंट्री प्रोवाइड्स एनफ कैपिटल टू पे फॉर ऑल डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी यू हैव सरप्लस सोर्स जिससे आप अपनी इंडस्ट्री को उठा सकते हैं. सरप्लस बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द शॉर्ट टर्म. In the long run, it becomes too dependent on export driven growth, यानी कि you are too dependent on exports. इसका मतलब क्या है, आपका मेजर सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रहा है जी, एक्सपोर्ट करके आ रहा है. व्हाट इफ इंटरनेशनल मार्केट में आपकी गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, व्हाट इज योर बैकअप प्लान देन, ठीक है, क्योंकि आप तो कहाँ से कमा रहे थे, आप एक्सपोर्ट कर करके कमा रहे थे. देयर माइट बी सैंक्शंस लग सकती हैं, या आपकी क्वालिटी कम हो सकती है. अनदर कंट्री हु इज प्रोड्यूसिंग मोर कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स, द डिमांड माइट शिफ्ट, राइट. तो सरप्लस के केस में लॉन्ग रन में क्या हो सकता है, यू आर टू डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स. हाउएवर, अगर आपकी किसी 1 साल 2 साल नहीं एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा होती, इसका मतलब है द कंट्री एज अ होल विल सफर बिकॉज यू आर टू डिपेंडेंट ऑन योर एक्सपोर्ट्स फॉर अर्निंग, ठीक है. सो प्रोज एंड कॉन्स दोनों के, राइट. नाउ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन कौन सी हैं. सो गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक कंडीशंस. देखो, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे ना 4, इकोनॉमिक ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन, लो अनएम्प्लॉयमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम. how does the government achieve those? By using these 3 policies. अब हम इन 3 पॉलिसीज को देखते हैं, ठीक है. डेफिसिट मीन्स वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी आप पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं और आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, रिसीव कम कर रहे हैं पैसे. तो जब आप पेमेंट ज़्यादा करते हैं, वी कॉल दैट लॉस को इन टर्म्स ऑफ बिजनेस हम कहेंगे डेफिसिट, ठीक है, यानी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला गया. So we'll discuss these 3 policies जो government apply करती है in order to achieve those objectives. First one is fiscal policy types, objectives and tools. अब type क्या जी, expansionary fiscal policy हो सकती है and contractionary fiscal policy हो सकती है. Fiscal policy के tools आपने याद रखने, government spending and taxes, ठीक है, ये 2 tools हैं which come under the fiscal policy. Now see, expansionary में what you are trying to achieve, as the name suggests, expansionary, you are trying to achieve a positive thing. For instance, आप क्या करना चाह रहे हैं जी, आप अपनी अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाह रहे हैं, ठीक है जी. हाउएवर, इससे आपकी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज करना चाह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स, एग्जैक्टली, ठीक है जी. सो बेसिकली एक्सपेंशनरी का मतलब यही होगा, यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज योर एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल डिमांड, और कॉन्ट्रैक्शनरी में आप अपनी डिमांड कम करना चाहते हैं. नाउ लेट्स सी, अगर आप इंक्रीज करेंगे अपनी एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग आप इंक्रीज करेंगे, यानी गवर्नमेंट जो होगी वो प्रोजेक्ट ज़्यादा करेगी, राइट, ताकि उसकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो ज़्यादा. एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होंगे, वेजेस आएंगी, दे विल डिमांड मोर, राइट. हायर वेजेस या मोर वेजेस विच मीन्स मोर आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एंड वो टैक्सेस कम कर देगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करेगी, टैक्सेस कम करेगी. टैक्सेस कम क्यों करेगी, सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द बिजनेसेस गोज डाउन एंड दे कैन प्रोड्यूस मोर. एज वेल एज टैक्सेस लगते हैं इनकम्स पे भी आपके. अगर मेरे पास, मुझे टैक्स कम लगेगा, सो आई विल हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम, राइट. मेरे पास ज़्यादा अमाउंट होगी टू स्पेंड. जब मैं स्पेंड ज़्यादा कर सकता हूँ तो ऑब्वियसली मैं डिमांड भी ज़्यादा करूँगा फिर. सो दैट्स वन वे इन इंक्रीजिंग योर टू इंक्रीज योर एग्रीगेट डिमांड. गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा कर दें और टैक्सेस को कम कर दें. हाउएवर, इफ यू नीड टू रिड्यूस इट, तो फिर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दें, यानी प्रोजेक्ट्स वगैरह कम लगाएं और टैक्सेस ज़्यादा कर दें, ठीक है. व्हाट्स द एम देन, एग्जैक्टली व्हाट्स द एम देन. देखो, इससे अनएम्प्लॉयमेंट आपकी क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, है ना भाई, क्योंकि आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करें, प्रोजेक्ट ज़्यादा लगा रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट हाई हो जाएगी, ठीक है. हाउएवर, इससे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी, right. So if you need to control one thing, the other goes up. That's why it's a cycle. आपने you keep have to intervening in this market. कभी आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करें, कभी कम करें, क्योंकि डिपेंड्स कि अगर इन्फ्लेशन को देन कम करना है तो फिर आप यहाँ पर आ जाओगे. अगर इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आप ये अप्लाई करोगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दोगे, टैक्सेस ज़्यादा कर दोगे, तो इससे इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाएगी. हाउएवर, और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी, वो तो नेगेटिव है, बट आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो जाएगी,
ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। एक्सपेंशनरी में आप डिमांड इंक्रीज करना चाहते हैं और कॉन्ट्रैक्शनरी में आप डिमांड डिक्रीज करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू अचीव एनी वन ऑफ द एम, राइट। सिमिलरली आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी के भी दो टूल्स हैं, एक मनी सप्लाई होती है, एक इंटरेस्ट रेट होता है, यानी इन दो को चेंज करके आप बेसिकली अफेक्ट कर रहे होते हैं अपनी एग्रीगेट डिमांड। एक्सपेंशनरी क्या होगी, यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज योर एग्रीगेट डिमांड। उसके लिए आप क्या करेंगे, दो टूल्स फिजिकल के कौन से थे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल्स कौन से, मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स। नाउ सी व्हाट हैपेंस, एक्सपेंशनरी में व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव, यू आर ट्राइंग टू अचीव एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। उसमें आप करेंगे क्या, फिर इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे। वाई, बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो पीपल विल नॉट सेव, है ना भाई। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो पीपल सेव करेंगे मनी कि यार वी आर अर्निंग इंटरेस्ट। अगर लोअर इंटरेस्ट रेट होता है तो पीपल एक तो सेव नहीं करेंगे, यानी दे विल हैव मनी इन देयर पॉकेट, मीनिंग दे विल डिमांड मोर। और दूसरा ये बिजनेस पर्सपेक्टिव से, बिजनेसेस कैन इजीली टेक लोन्स। जब वो लोन लेंगे तो वो इन्वेस्ट भी ज्यादा करेंगे। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नाउ आपको लोन्स कम इंटरेस्ट पे अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या था, जीडीपी में इंक्रीज। दूसरा ये क्या होगा जी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, राइट। हाउएवर इससे होगा क्या, इससे आपकी इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी, राइट। सो सी हाउ डिफरेंट थिंग्स आर बीइंग अफेक्टेड। मनी सप्लाई, अगेन मनी सप्लाई इंक्रीज करके, मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज करेगी, बाय इंजेक्टिंग मनी इनटू द मार्केट। नाउ इफ मोर पीपल हैव मनी in their hands, they will spend more, they will demand more. So same concept यही है कि आप मनी सप्लाई इनको इंक्रीज करके एंड इंटरेस्ट रेट को लो करके you can achieve your aggregate demand increase, right? It's typically used after recession has started. Recession में remember purchasing power कम हो जाती है, so now you are trying to increase that, ठीक है जी। तब आप लोअर इंटरेस्ट रेट कर देंगे ताकि पीपल बोरो जरूर ज़्यादा कर लें, और मनी सप्लाई इंजेक्ट कर देंगे ताकि पीपल हैव मोर मनी इन देयर हैंड्स सो दैट द डिमांड गोज अप। इसी को अगर आप ऑपोजिट कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी में, अब आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर लेंगे, इसका एम क्या होगा, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन में भी, राइट। अच्छा, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट से क्या होगा, नाउ पीपल विल नॉट बोरो, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा पे करना है, बट दे विल सेव मोर, ठीक है। और दूसरा ये कि वो मनी सप्लाई को कम कर देंगे। हाउ डू दे डू इट, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बेसिकली बॉन्ड्स या स्टॉक्स पे अपने जो ये सिक्योरिटीज वो बाय या सेल करके मनी इंजेक्ट या विड्रॉ कर लेती है, ठीक है। अगर मनी सप्लाई उन्होंने कम करनी होगी, यानी दे हैव टू टेक मनी आउट, तो वो क्या करेंगे, दे विल सेल द सिक्योरिटी वो रिटर्न देते हैं कुछ, ठीक है जी। बट दैट्स इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर कॉन्ट्रैक्शनरी में आपने डिमांड कम करनी है, उसकी वजह से वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे सो दैट पीपल डोंट बोरो मोर और मे बी दे सेव मोर, ठीक है जी। एंड मार्केट सप्लाई को, मनी सप्लाई को वो कम कर देंगे। सो इन अ नटसेल ये थी आपकी डिमांड साइड पॉलिसीज, फिजिकल एंड मॉनेटरी। देन कम्स द थर्ड पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी। सप्लाई साइड पॉलिसीज का मकसद क्या है जी, जस्ट टू चेंज योर सप्लाई। वो दो जो थी वो आपकी डिमांड को डायरेक्टली अफेक्ट करी थी, यहाँ पे आपकी सप्लाई को अफेक्ट करना है, सही है। सो माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज एम एट इंक्रीजिंग सप्लाई एंड प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे ओनली द गवर्नमेंट इज ओनली फोकसिंग ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इफेक्ट्स क्या होंगे जी, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। जब आप सप्लाई इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव हो जाएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हो जाएगा बिकॉज यू कैन एक्सपोर्ट मोर, एंड हाउएवर दिस विल कॉज बजट डेफिसिट, यू आर स्पेंडिंग मोर। ऑलराइट, सो इसकी पॉलिसीज क्या हो सकती है, इनकम टैक्स कट्स, सब्सिडीज, यानी ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग योर सप्लाई। डीरेगुलेशन क्या होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन कम कर देना फॉर बिजनेसेस टू रन प्रॉपर्ली। रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, यानी एनीवन or most of the business can easily enter into that particular market. Labor market reforms, आप लेबर के लिए incentives दे देंगे ताकि वो ज़्यादा सप्लाई हो, यानी उनके नंबर ऑफ अवेलेबल पीपल ज़्यादा हो जाए। प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है जी, जब आप किसी फर्म को प्राइवेट ओनरशिप दे देते हैं, प्राइवेट ओनरशिप का पर्पज होता है प्रॉफिट मोटिव, सो दे विल बी मोर एफिशिएंट इन सप्लाइंग, यानी वो वो काम करेंगे जिससे कॉस्ट कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी। इन्वेस्टमेंट ऑन हाउसिंग, इन्वेस्टमेंट ऑन प्रोजेक्ट्स, इंप्रूविंग ऑन एजुकेशन पे आप इन्वेस्ट करेंगे, दिस हैज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। जितना अच्छा लेबर होगा उतनी सप्लाई बेहतर होगी, राइट।
spending on health, for again healthy labor and public sector investments. All of these things will affect your supply positively. अगर आप ये सारे काम करते हैं तो इससे आपकी सप्लाई इंक्रीज होती है, ठीक है. So these are the supply side policies. However, how might businesses react to policy changes? अब ये जो changes government ला रही थी, business कैसे react करेगी? So a few examples. डिपेंड करता है वेयरिंग ऑन हाउ मच इम्पैक्ट द पॉलिसी चेंज विल हैव ऑन दैट पर्टिकुलर बिजनेस. अगर उस पॉलिसी का कोई इफेक्ट ही नहीं है आपके बिजनेस पे, यू विल टेक नो एक्शन. सो फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है जी, अगर वो इंक्रीज करती है इनकम टैक्स, दिस रिड्यूसेस द अमाउंट कंज्यूमर्स हैव टू स्पेंड. ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या आ गई, इंक्रीज इनकम टैक्स यानी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी. सो पॉसिबल बिजनेस डिसीजन क्या है, वो क्या कर सकते हैं जी, प्राइसेस को कम कर दे सो दैट वो जो डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम है, दे कैन मैच दैट विद देयर प्राइसेस कम करके वो दोबारा से डिमांड जनरेट कर सकती है और प्रोड्यूस चीपर प्रोडक्ट्स टू अलाउ फॉर लोअर प्राइसेस. ठीक है, अगर उसको ज़ाहिर कॉस्ट भी तो पड़ रही होगी ना, सो इट नीड्स टू लोअर इट्स कॉस्ट सो दैट वो प्राइसेस कम कर दे. दैट्स वन ऑफ द पॉसिबल थिंग्स दैट बिजनेस कैन डू. प्रॉब्लम्स क्या है इससे, लेस प्रॉफिट ऑब्वियसली, या आपकी क्वालिटी माइट बी अफेक्टेड. ठीक है, क्योंकि आप लेस यानी आप चीपर मटेरियल यूज कर रहे हैं. ठीक है, दैट माइट बी द प्रॉब्लम अगर आप रिएक्ट करते हैं इस तरीके से. देन इंक्रीज टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स. टैरिफ कहते हैं ड्यूटी को, जो इम्पोर्ट्स पे आप टैक्सेस लगाते हैं. So what can the business do in reaction? Focus more on the domestic market as locally produced goods are now cheaper. ठीक है जी, that's one reason government क्यों imports पे ज़्यादा टैक्स लगाती है, ताकि आपकी domestic market ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो. Switch from buying imported materials and components to locally produced ones. इससे प्रॉब्लम क्या होगी, might still be more profitable to export. Foreign material and components might be of higher quality. Again quality का मसला आ जाता है. ठीक है जी, you are depending on locally produced goods which might be of lower quality. So again आपकी brand image कम हो सकती है. Then increase interest rates. If government increases interest rate, business क्या reaction कर सकती है, reduce investments so future growth will be less. क्योंकि now see, they businesses कैन नॉट बोरो मोर, क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम कर देंगी. डेवलप चीपर प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर विल बी बेटर एबल टू अफोर्ड एंड सेल एसेट्स फॉर कैश टू रिड्यूस एग्जिस्टिंग लोन्स. उन्होंने दे हैव टू गेट रिड ऑफ देयर लोन्स, तो वो बाकी तरीके ढूंढेंगी टू फाइनेंस देयर ऑपरेशंस. सो अदर कंपनीज माइट स्टिल ग्रो, सो मार्केट शेयर विल बी लॉस्ट. अगर दूसरी कंपनीज है जो much bigger than your company, they will be able to get cheaper loans. क्योंकि remember, managerial economies of scale and all of those economies of scale, financial economies of scale, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकता है. ठीक है जी, सो योर बिजनेस माइट नॉट बी हैविंग दैट फैसिलिटी, तो आपका मार्केट शेयर कम हो सकता है. देन depends on the product, but could consumers start to think that the quality and brand image are lower? Again depends कि आप अगर cheaper material ले रहे हैं, cheaper supply of labor ले रहे हैं, that might be the problem. The assets might be needed for future expansion. If you are selling your assets to generate finance, हो सकते हैं वो assets आपके काम आने थे आगे. ठीक है, and you might not be having those in the time of urgency, right? So ये है some of the economic policies and the reaction that a government can place. So this was topic number 1 of unit number 6. We are left with 2 topics and we will be completing the course inshallah this week.